पूरे देश के विच SDM ਅਤੇ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 21 तारीख को लखीमपुर खीरी में जो ज्यादतियां हैं, जमानत होने के बाद जिस तरीके के हमले हुए हैं वहाँ विटनेसेस के ऊपर, उस सवाल को भी, और ख़ासतौर पे ये जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 उसमें भी सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर बहुत बड़ा हमला। हर धर्म उसमें शामिल है, कि हिंदू है, सिख, मुस्लिम, ईसाई, हर धर्म साझा है। किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग इलेक्शन में गए हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनका SMK से कोई संबंध नहीं है। 25 ਤਰੀਕ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਅਤੇ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਰੋਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3 ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਨਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਹੀਕਲ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ ਸਾਥੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। और उस तो बाद साडा मार्च है जिहड़ा पैदल मार्च करने की मजबूरी होगी अगर उन्होंने मंग पत्र ना लिया तो। साथियों, इंद्रजीत जी, हमारी हरियाणा की SKM की मीटिंग कल हुई थी और उसमें सर्वसम्मति से हमने तय किया है कि 21 तारीख को जो लंबित चीज़ें हमारे 9 दिसंबर का जो एग्रीड रिटर्न डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार ने दिया था SKM को, जिसके आधार पर विद्रोह हुई थी, उसकी लंबित मांगों को 21 तारीख को लखीमपुर खीरी में जो ज्यादतियां हैं, जमानत होने के बाद जिस तरीके के हमले हुए हैं वहाँ विटनेसेस के ऊपर, उस सवाल को भी, और ख़ासतौर पे ये जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 उसमें भी सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर बहुत बड़ा हमला पूरे देश के अधिकारों के ऊपर है। और उसके बाद ये आदत पड़ गई, अब वो BBMP का उन्होंने 1974 के नियमों जो परिवर्तन किया है, तो हरियाणा और पंजाब का स्पेशल दर्जा जो था BBMP के ऊपर वो ख़त्म हो गया। इस प्रकार के नियमों में परिवर्तन हुए हैं और ये सिलेबस में जो तब्दीलियां की गई हैं ये तो बहुत ही घातक चीज़ है। ये भी सुनियोजित ढंग से और सिस्टमेटिकली एक एक करके, जैसे अभी सिख इतिहास के बारे में बताया गया, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इन तमाम मसलों को लेते हुए हम 25 तारीख का ये रखा है और उसमें हरियाणा के साथी भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके बड़ी संख्या में 25 तारीख को यहाँ मोहाली में इकट्ठे होंगे गुरुद्वारा अंब साहब विच।
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ सरसा ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ साथियों, एसकेएम ਦੇ सब कुछ 21 और 25 के बारे में बता दिया गया है। 21 तारीख को जो डीसी और एसडीएम हेडक्वार्टर पे हमने रोज प्रदर्शन और ज्ञापन देना है, उसका समय 11 बजे से 1 बजे। और दूसरा जो 25 तारीख को हमने यहाँ आना है, पूरे का पूरा हरियाणा जो है, हरियाणा और पंजाब मिलकर, क्योंकि जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसका दोनों का हक है जो गवर्नमेंट ले रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। खाली यही नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब के हाथों से लेकर सेंटर अपने कब्जे में पूरे का पूरा करना चाहती है। उस सारे का हम विरोध करते हुए पूरी जितनी हमारी मांगें अभी हमारे साथियों ने बताई है, हरियाणा पंजाब एक होकर उस मांगों के ऊपर आगे बढ़ेगा। और जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, जो बलदेव सिंह सिरसा जी ने एजुकेशन बोर्ड के सामने कई दिनों से धरना लगा रखा है, उसके ऊपर भी पूरे देश का हर एक आवाम, पूरी दुनिया का आवाम जो है इकट्ठा होकर इसकी लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि जो इतिहास है, हर धर्म उसमें शामिल है, चाहे हिंदू है, सिख, मुस्लिम, ईसाई, हर धर्म साझा है। किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। 20 साल पहले से हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो इतिहास बदले जा रहे हैं और हमारे गुरुओं पर सीधे तौर पर इनका अटैक है, वो हमारी असमत ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के उपलक्ष्य में हमारे सिरसा साहब लगभग 2 महीने से बैठे हैं धरने पर, और यदि सरकार इसके ऊपर सहज्ञान नहीं लिया तो आगे आने वाले टाइम में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों पर जो सरकार ने चुनाव जीतने बाद में संहार किया है, वो सरकार चेत जाए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब घर घर से एक लठ उठेगा। धन्यवाद। इसके साथ ही एक बात और है, पंजाब में एक तरह की लोगों के मनों में, किसानों के मनों में दुविधा फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे के बहुत से लोग ऐसे थे जो चुनावों में चले गए, उन्होंने एसएमएस के नाम की एक पार्टी बना ली और चुनाव लड़ा, एक एसएसपी बनाई है। और अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को एसकेएम बता रहे हैं और किसानों के मनों में जो दुविधा पैदा कर रहे हैं। तो हम आज साफ कर देना चाहते हैं कि उनका जो लोग इलेक्शन में गए हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनका एसएमके से कोई संबंध नहीं है।